So here I will be starting with the stellar system. So here first we should know what is steel. Now the word steel, it was first utilized by the scientist Van Tygem and Dolliot. अब ये जो स्टील वर्ड है, दिस इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स कॉलम. इसका मतलब है कॉलम. अब स्टील रिप्रेजेंट क्या करता है? इट इज सेंट्रल वैस्कुलर सिलेंडर ऑफ एक्सिस. Yes, it is central vascular cylinder of axis which includes xylem, phloem, pericycle, and the pith can be present or it can be absent. So what does the steel represent? It represents central vascular cylinder of axis. Vascular cylinder है तो इसका मतलब present होगा vascular tissue. So there is presence of xylem, vascular tissue. There is presence of phloem, pericycle, and the pith can be present or it can be absent. Now, the steel can be broadly divided into the two categories on the basis of pith. पिथ के बेसिस पर हम स्टील को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं. अगर स्टील के अंदर पिथ एब्सेंट है, if the pith is absent, this type of the steel, it is known as protosteel. And if the pith is present, then it is known as Siphonosteel. So here I will be discussing types of protosteel and types of Siphonosteels. तो पहले आप उन categories का यहाँ पर नाम लिखिए. Now the types of protosteel which I will be dealing here: 1. Haplosteel, then actinosteel, plactosteel, and mixed steel. In the Siphonosteel, I will be dealing actofloic Siphonosteel, then amphifloic Siphonosteel, then the another category that is solanosteel and dictyosteel. तो ये सारी categories यहाँ पर हम discuss करेंगे. So first of all, I will be dealing with the protosteel, and in the protosteel I will be starting with the haplosteel here, right? So let's start with the types of protosteel. So in the protosteel, the first category I will be discussing here, that is haplosteel, and the haplosteel is present in rhinium. So haplosteel के अंदर सेंटर में प्रेजेंट है जाइलम. तो in the center here I am representing xylem. All around the xylem there is presence of phloem. तो xylem के आसपास
अब मैं फ्लोएम फॉर्म कर रही हूं. Yes, so this one. This is phloem. Around the phloem, this layer you seeing here? Yes, you are seeing this layer around the phloem. This layer is representing pericycle. पेरिसाइकिल के बाद जो टिश्यू की लेयर प्रेजेंट है दैट इज एंडोडर्मिस. सो हियर आई एम फॉर्मिंग एंडोडर्मिस. Yes. So this one. Endodermis. Endodermis के बाद cortex and cortex के बाद outermost layer of any organ that is the epidermis. So इसके बाद हम बनाएंगे cortex and epidermis. Now this one is cortex and this is outermost layer of any organ that is endodermis. तो यहां पर आप स्टील किसको बोलेंगे? Yes, the steel is xylem surrounded by the phloem plus pericycle. Xylem, phloem, pericycle together constitutes the steel. और यहां पर हम जो स्टील की कैटेगरी स्टडी कर रहे हैं that is protosteel, and you know that in the protosteel the pith is absent. Now coming to the second category, that is actinosteel. Actinosteel, this is present in Lycopodium, serratum. Right? अब एक्टिनोस्टील के अंदर मैं सिर्फ स्टीलर रीजन दिखाऊंगी. आई विल नॉट बी शोइंग एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड एपिडर्मिस. सो आई विल बी मेकिंग ओनली हियर स्टीलर रीजन. Yes, so you can see here this I am forming xylem. Yes, so this is xylem. Now you can see in the actinosteel the xylem is star shape. The star shaped xylem is there. और ये जो xylem है वो radiating ribs फॉर्म कर रही है. रेडिएटिंग रिब्स फॉर्म कर रही है. और ये जो मैंने यहां पर एरिया बनाया, these areas they are occupied by the phloem. Yes, so this is representing phloem.
तो यहां पर एक्टिनोस्टील के अंदर पहला फीचर क्या है? दैट द जाइलम इज स्टार शेप, इट इज फॉर्मिंग रेडिएटिंग रिब्स, जिसकी वजह से अब फ्लोएम की कवरिंग कंप्लीट नहीं है. यू कैन सी हियर कि इन द केस ऑफ द प्रोटोस्टील द कवरिंग ऑफ द फ्लोएम इज कंप्लीट, इट इज फॉर्मिंग अ यूनिफॉर्म लेयर. बट यहां पर जाइलम ने रेडिएटिंग रिब्स बनाए हैं, ड्यू टू विच द फ्लोएम इज नॉट यूनिफॉर्म हियर. Now after the actinosteel, the next category, that is Plactosteel. Plactosteel is again seen in Lycopodium, the species of the Lycopodium, that is clavatum. Now what do you mean by placto? Placto का मतलब है plates. तो यहां पर अब क्या हो रहा है कि जो जाइलम है दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द प्लेट्स. द जाइलम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द लामिले लाइक दिस. So here you will see that दिस इज जाइलम. और अब जाइलम कैसे प्रेजेंट है? प्लेट्स की फॉर्म में. और बीच में ये जो पार्ट यहां पर हम दिखा रहे हैं, दिस पार्ट इज फ्लोएम. So the type of steel where the xylem is present in the form of the plates और उसके साथ phloem alternate कर रही है. So this type of the steel, it is known as Plactosteel. Now coming to the next one is mixed steel. Mixed steel is again seen in the species of the Lycopodium, that is Lycopodium sorghum. As the name suggests, mixed steel, यहां पर जाइलम और फ्लोएम के पैचेस जो हैं वो मिक्सिंग शो कर रहे हैं, like this. यस, तो ये मैं दिखा रही हूं जाइलम के पैचेस. तो जाइलम इज इन द फॉर्म ऑफ द पैचेस, इट इज स्कैटर्ड. और बीच में जो पार्ट यहां पर प्रेजेंट है, इन बिटवीन द जाइलम, दैट इज रिप्रेजेंटिंग फ्लोएम. तो ये जो मैंने प्रोटोस्टील बनाई है, द प्रोटोस्टील इज द मोस्ट प्रिमिटिव स्टील. और इन सब में से जो सबसे प्रिमिटिव है दैट इज हैप्लोस्टील. हैप्लोस्टील से अराइज हुई है एक्टिनो. फ्रॉम द एक्टिनो देयर इज एवोल्यूशन ऑफ प्लैक्टो, और प्लैक्टो से इवॉल्व हुई है मिक्स्ड स्टील. So it means among these type of the protosteel, this is primitive and this is the most advanced one. तो एक एक important feature सबके बारे में. यहां पर जाइलम प्रेजेंट है सेंटर में, और फ्लोएम कैसे प्रेजेंट है? In the form of uniform layer. Here the xylem is present in the, xylem is having star shape. Star shape xylem is present. In this case, the xylem is present in the form of plates, lamellae, and in this there is mixing of the xylem and phloem. Now after dealing with the protosteel, I will be starting with the next category, that is the siphnosteel. So let's start with the siphnosteel. In the siphnosteel, first category which I will be dealing here, that is ectofloic siphnosteel.
this ectofluic siphonosteal. It is present in Osmunda and horsetail. So you know the scientific name for the horsetail, that is Equisetum. साइफोनोस्टील है तो इसका मतलब एक मेन जो फीचर है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ पैरेन्काइमेटस कोर. देयर इज प्रेजेंस ऑफ पैरेन्काइमेटस कोर, दैट इज पिथ. पिथ इज प्रेजेंट. तो सेंटर के अंदर यहां पर मैं पिथ फॉर्म कर रही हूं. यस, सो दिस इज पैरेन्काइमेटस पोर नोन एज पिथ. पिथ के आसपास देयर इज प्रेजेंस ऑफ जाइलम. दिस वन. आई एम फॉर्मिंग हियर. This is xylem. Now the xylem is surrounded by one layer of phloem. Yes. So this is one layer of phloem around the xylem. उसके बाद pericycle. Yes. So this is pericycle. Pericycle के बाद endodermis. Yes. So this one is एंडोडर्मिस. और एंडोडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स एंड एपिडर्मिस. So this one is cortex. Then the outermost layer. Yes, this is outermost layer, that is epidermis. तो ये जो स्टील है, स्टील का एक जो फीचर है दैट देयर इज प्रेजेंस ऑफ पिथ. पिथ की प्रेजेंट है. ये जो स्टील है, स्टील का नाम है एक्टोफ्लोइक. एक्टोफ्लोइक का मतलब है देयर इज प्रेजेंस ऑफ ओनली one layer of phloem outside the xylem. Yes, only one side of the xylem there is presence of phloem. So please write this information. On one side of xylem there is presence of phloem. और कौन सी साइड पर फ्लोएम प्रेजेंट है? बाहर की तरफ. इट मीन्स टूवर्ड्स दी आउटर साइड. आउटर के लिए वर्ड हम यूज क्या करते हैं? एक्टो. दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ द स्टील इट इज नोन एज एक्टोफ्लोइक स्टील. नाउ कमिंग टू द सेकंड वन, दैट इज एम्फीफ्लोइक. एम्फीफ्लोइक siphonosteal. Now the amphifloic siphonosteal, this is present in Marsilia. अब एम्फीफ्लोइक का मेन फीचर क्या है? इसके अंदर अब प्रेजेंट है फ्लोएम ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ जाइलम. यस, प्लीज सी हियर. यहां पर मैंने क्या दिखाया? ये जाइलम है और सिर्फ बाहर की तरफ फ्लोएम प्रेजेंट है. बट एम्फीफ्लोइक के अंदर क्या होगा? ऑन द इनर साइड ऑफ द जाइलम एज वेल एज आउटर साइड ऑफ द जाइलम देयर इज प्रेजेंस ऑफ फ्लोएम. तो अंदर की तरफ भी फ्लोएम है और बाहर की तरफ भी फ्लोएम है. सच टाइप ऑफ द स्टील इट इज नोन एज एम्फीफ्लोइक स्टील. सो हियर आई विल बी फॉर्मिंग द डायग्राम फॉर द एम्फीफ्लोइक.
सो साइफनो स्टील है तो सेंटर के अंदर प्रेजेंट होगी पिथ, तो ये हम बना रहे हैं. दिस इज पिथ. नाउ पिथ के बाद अब मुझे बनानी है फ्लोएम, राइट. तो नाउ आई विल बी फॉर्मिंग फ्लोएम. फ्लोएम के बाद जाइलम. यस, सो दिस वन इज जाइलम. राइट, जाइलम के बाद दोबारा फ्लोएम. यस, तो ये बनाया जाइलम. नाउ दिस वन इज फ्लोएम. नाउ दिस इज रिप्रेजेंटिंग पेरिसाइकिल. And after the pericycle, there is endodermis. So this one, which I am forming here, this one is एंडोडर्मिस, और उसके बाद कॉर्टेक्स एंड एपिडर्मिस. यस. Now very important point to note down here. One, कि एम्फीफ्लोएम के अंदर on the inner side of the xylem and on the outer side of the xylem there is presence of phloem. तो दोनों तरफ फ्लोएम प्रेजेंट है. इसके साथ साथ ये जो पेरिसाइकिल है और ये जो एंडोडर्मिस है बाहर की तरफ भी प्रेजेंट है, एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट टूवर्ड्स द इनर साइड. Pericycle endodermis is present towards the outer as well as inner side. Though I am not forming the structure in this diagram, so but you please keep this in mind. Pericycle endodermis present both towards the outer as well as the inner side, just like the phloem. Now here I have to discuss now one feature associated with the steel, that is leaf trace. ये फीचर मैंने यहां पर डिस्कस करना है, leaf trace. And along with that I will also be discussing leaf gap. अब यहां पर जो मैंने सेक्शन कट करा, दिस इज ट्रांसफर सेक्शन. ये स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन है. दिस इज टीएस. जब हम स्टेम का टीएस कट कर रहे हैं तो स्टील कैसे दिखाई दे रही है? इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग, इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर, इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग. अब यहां पर मैं कट कर रही हूं longitudinal section of stem. So not what I am cutting, longitudinal section. So this is longitudinal section of stem. जब हम स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन कट कर रहे थे तो जो स्टील है, the steel, it appears in the form of the ring. Yes,
ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर जो स्टील है वो रिंग की फॉर्म में नजर आ रही थी, पर अब हमने कट करा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के अंदर जो स्टील है वो रिंग की फॉर्म में नहीं नजर आएगी। इंस्टेड द स्टील विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ 2 strands। तो ये एक वैस्कुलर स्ट्रैंड मैं यहां पर बना रही हूं, एंड दिस इज अनदर वन। तो जब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करेंगे तो जो अब वैस्कुलर टिश्यू है, द स्टील, इट विल गिव द अपीयरेंस ऑफ दिस स्ट्रैंड्स। You know that the characteristic feature of the stem is that it is divided into the nodes and internodes. Stem is divided into the nodes and internodes. Let's say this is node. This is node. And you know कि जो node है, node के ऊपर present होती हैं leaves and there is presence of buds. So let's say over the node there is presence of a leaf. नोड के ऊपर ये लीफ प्रेजेंट है, ये लीफ की वैस्कुलर सप्लाई है। यस, दिस इज द वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर सप्लाई ऑफ द लीफ। अब ये जो मैंने यहां पर बनाया है, दिस इज द वैस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टेम, और ये जो मैंने यहां पर बनाया है, दिस इज द वैस्कुलर सिस्टम ऑफ लीफ। The vascular system of leaf and vascular system of stem, they are joined together. Yes, they are joined together. इस vascular system को of stem को और vascular system of leaf को join करना है, and this joining will occur with the help of a vascular bundle, and that vascular bundle is known as leaf trace. So you're getting this? This is the vascular system of stem. It is joined with the vascular system of leaf. और joining के लिए ये जो vascular bundle help कर रहा है, this vascular bundle, it is known as leaf trace. So you please label this. This is leaf trace. So this is very much clear to you कि leaf trace क्या है? This is a vascular bundle. This is a vascular tissue which is joining the vascular system of stem with the vascular system of leaf. ये जो यहां पर मैंने सेक्शन बनाया, ट्रांसवर्स सेक्शन, इस सेक्शन को मैंने बनाया है इस रीजन से। यहां से मैंने ट्रांसफर सेक्शन कट करा और ऐसा दिखेगा, राइट। पर अगर मैं ट्रांसफर सेक्शन कट करती हूं यहां से मैं ट्रांसफर सेक्शन कट करूंगी, तो अब इस वैस्कुलर सिलेंडर के साथ साथ और क्या दिखेगा यहां पर? लीफ ट्रेस। अगर मैंने सेक्शन यहां से कट करा तो वैस्कुलर सिलेंडर तो दिखेगा ही, और वैस्कुलर सिलेंडर के साथ साथ एक कनेक्टर जो लीफ और स्टेम की सप्लाई को जोड़ रहा है। एंड व्हाट इज दिस कनेक्टर? दिस कनेक्टर इज लीफ ट्रेस। तो ये मैंने यहां पर बनाया है लीफ ट्रेस। तो ये बात आपको समझ आ रही है? दिस इज वैस्कुलर सप्लाई ऑफ स्टेम, और ये क्या है? लीफ ट्रेस है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लीफ ट्रेस? It will join the vascular supply of the stem as well as of the leaf. Now, sometimes what happens, कई बार क्या होता है कि लीफ ट्रेस के ऊपर जो वैस्कुलर सिलेंडर फॉर्म होना है, जो वैस्कुलर टिश्यू फॉर्म होना है, दैट वैस्कुलर टिश्यू इज एब्सेंट। तो देखिए, अब सेकेंड कंडीशन मैं दिखा रही हूं। तो चलिए देखिए,
ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ये है vascular strands in the stem, right? नोड पर ये लीफ की vascular supply, okay? And this I am forming, yes. तो ये क्या है? This is leaf trace. Now sometimes what happens कि जहां से ये लीफ ट्रेस डाइवर्ज हुआ है वहां पर ये जो वैस्कुलर सिस्टम है स्टेम का, सम पार्ट इट इज एब्सेंट, यस, लाइक दिस. जहां से लीफ ट्रेस डाइवर्ज हुआ है वहां पर वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है. वहां पर जो स्टेम का वैस्कुलर सिलेंडर है उसका कुछ पार्ट एब्सेंट है, एंड इंस्टेड ऑफ द वैस्कुलर टिश्यू हियर देयर इज प्रेजेंस ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू. वैस्कुलर टिश्यू की जगह पर यहां पर प्रेजेंट है पैरेन्काइमेटस टिश्यू. तो नाउ दिस इज नॉट वैस्कुलर टिश्यू, दिस इज पैरेन्काइमेटस टिश्यू. तो ये जो एरिया है जहां पर इंस्टेड ऑफ द वैस्कुलर टिश्यू देयर इज प्रेजेंस ऑफ द पैरेन्काइमेटस टिश्यू, दिस पार्ट इट इज नोन एज लीफ गैप. तो यहां पर क्या लग रहा है कि यहां पर जो वैस्कुलर सिलेंडर था वो लीफ के अंदर डिफ्लेक्ट हो गया है. तो ये जो पार्ट है जहां पर वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है, दिस पार्ट इज नोन एज लीफ गैप. लीफ गैप के जस्ट नेक्स्ट ये, इसको मैं क्या लेबल करूं? दिस इज लीफ ट्रेस, राइट. जिस स्टील के अंदर एक या फ्यू लीफ गैप प्रेजेंट होते हैं, such type of the steel it is known as Solano steel. Yes, please write this. What is Solano steel? There is presence of one or few non-overlapping leaf gap, and this is seen in the walking fern, that is adiantum. अब यहां पर स्टील दिखेगी कैसे? अब मैं यहां पर ट्रांसफर सेक्शन कट कर रही हूं, यहां पर ट्रांसफर सेक्शन कट कर रही हूं और यहां पर मैं फॉर्म कर रही हूं ये ट्रांसफर सेक्शन. नाउ this is how the steel will appear. तो अब वैस्कुलर सिलेंडर कंप्लीट नहीं है. यू कैन सी हियर कि वैस्कुलर सिलेंडर कंप्लीट नहीं है क्योंकि यहां पर अब आया है एक गैप. तो अब यहां पर रिंग नहीं बनाएंगे हम, यहां पर हम एक गैप बनाएंगे. एंड यू टेल मी व्हाट दिस गैप इज नोन एज. दिस इज लीफ गैप. लीफ गैप के जस्ट नेक्स्ट में क्या फॉर्म करूं? ये लीफ गैप और इसके जस्ट नेक्स्ट में क्या फॉर्म करूंगी? लीफ ट्रेस. सो दिस इज लीफ trace. तो सोलानो स्टील क्या हुई? द स्टील विच इज हैविंग वन और फ्यू लीफ गैप, इट इज नोन एज सोलानो स्टील. नाउ द लास्ट कैटेगरी ऑफ द स्टील, दैट इज डिक्टियो. द स्टील विच हैज लार्ज नंबर, बहुत सारे large number of overlapping leaf gaps.
large number of leaf caps. This is known as dictyostele. For this, one example is Dryopteris. You know, this is a fern. Another fern. You write name here, that is Pteris. तो ये जितने भी यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ऑल दे आर रिप्रेजेंटिंग दी फर्न्स, और फर्न्स के अंदर द लीफ गैप फॉर्मेशन इज वेरी कॉमन. So the different types of the stele is very much clear to all of you. Now after the stele, now I will be dealing with the life cycle of Selaginella and Dryopteris.